Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. पर उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले I must let you know that I have an agriculture optional course. When you go to the playlist section of this channel, you will find two playlists, paper 1 and paper 2. Agriculture optional paper 1 and agriculture optional paper 2. Using that two playlists, I have taught the complete agriculture option. So please do have a look. It can be helpful to you. Now let's move to the question. So today's question is classify types of male sterility and self incompatibility systems in plants. तो हमें मेल स्टेरिलिटी के टाइप्स को क्लासिफाई करना है और सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी के टाइप्स को क्लासिफाई करना है। तो दो पार्ट यहाँ क्वेश्चन पे हो गए और तीसरा पार्ट जो है व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ CGMS दैट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। So that is CGMS, that is cytoplasmic genetic male sterility, is one of the types of male sterility. तो उसका क्या limitations in hybrid seed production उसको डिस्कस करना है। तो actually we have three parts in the question and we have to discuss each part carefully and let's see how we approach this question, and you should also try to write these types of answers by yourself. खुद से भी ऐसे आंसर्स आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे। So please try to write the answers by yourself only. It will enhance the quality of your answers. When you will observe your answers after some time, you will see the quality of your answers as compared to your previous answers will be much better. So please try to write by yourself. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मेल स्टेरिलिटी होता है, क्या सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी होता क्या है? इनएबिलिटी और टू प्रोड्यूस और रिलीज फंक्शनल पोलन। तो यहाँ पे कोई एक प्लांट फंक्शनल पोलन को या तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या तो रिलीज नहीं कर पा रहा है। व्हेयरएज सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा ही लिखते हैं, उसमें क्या होता है? प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन। फंक्शनल पोलन उनके पास है, ठीक है। हियर दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और रिलीज फंक्शनल पोलन, हियर दे आर एबल टू प्रोड्यूस और रिलीज फंक्शनल पोलन, but this functional pollen is not able to set seed when self pollinated। इसीलिए सेल्फ पोलिनेटेड से सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, मतलब इनके पास जो यहाँ फंक्शनल पोलन है वो दैट इज नॉट एबल टू, वो सीड को सेट्स नहीं कर पाता है वन सेल्फ पोलिनेटेड। तो दिस इज व्हाट सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी इज। और मेल स्टेरिलिटी में तो क्लियर क्या है कि उनके पास फंक्शनल पोलन रिलीज ही नहीं कर पा रहा है, ना प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या तो रिलीज नहीं कर पा रहा है। यहाँ वो प्रोड्यूस भी कर पा रहा है और रिलीज भी कर पा रहा है, लेकिन फिर भी सेल्फ पोलिनेटेड के बाद वो सीड्स को सेट नहीं कर पा रहा है। Here they are able to produce and release. In male sterility, they are not, plants are not able to produce or release functional pollen. Here they are able to produce and release functional pollen, but still those functional pollens are not able to set seeds when self-pollinated. So this was the major concept. So I hope you understand the concept of male sterility and self-incompatibility. Now moving to the first part of question, that is types of male sterility. So the first type is genetic male sterility. Genetic, तो आपको नाम से पता चल रहा है किससे काउज होता है? It is caused by nuclear genes. Cytoplasmic, it is caused by, or you can say it is controlled by cytoplasmic genes. Okay, क्लियर हो गया आप लोग? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में किससे कंट्रोल हो रहा है? न्यूक्लियर जीन से। और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में किससे कंट्रोल हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक जीन से। नाउ वी विल मूव ऑन। न्यूक्लियर जीन्स एन एग्जांपल, यू कैन सी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इन क्रॉप्स सच एज barley, wheat, maize, cotton, etc. In all this you will be able to see genetic male sterility. And genetic male sterility is usually recessive, and rarely dominant. It is usually recessive, caused by nuclear genes, usually recessive, and in most of the cases it is caused by single gene. That is, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के लिए, एंड वेरी लिटिल इन फ्यू केसेस 2 or more genes are needed.
two or more genes in few cases. That is, most of the times that single gene is responsible for genetic male sterility, and very few cases two or more gene is responsible for genetic male sterility. So usually recessive usually caused by single gene, and it is consists of two lines, that is A line and B line. These are two lines. So here the A line जो यहाँ पे है, that is used as female parent. This A line is used as female parent, and the B line is used to maintain the sterility of female parent. Used to maintain sterility of A line, or you can say female parent. तो ए लाइन में क्या होता है, फीमेल पेरेंट होती है, और बी लाइन को क्यों यूज करते हैं, ताकि जो ए लाइन ये जो फीमेल पेरेंट है उसको स्टेबिलिटी को वो मेंटेन कर पाए. तो इन जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी, दैट इज जीएमएस, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी, दैट इज सीएमएस. ओके, तो इन जीएमएस you will find that after maintaining of and crossing of A and B line, the result is 50% sterile plant. जब भी ये A और B लाइन को क्रॉस किया जाता है तो जो रिजल्ट इज 50, you will get 50% sterile plants. So this was about genetic male sterility. Now moving to the second part, that is cytoplasmic male sterility, and it is caused by cytoplasmic genes, and it is also consists of two lines, that is A line and B line. So here A line is the male sterile line. यहाँ जो A line है that is male sterile line. यहाँ पे क्या line थी, female parent था, पर यहाँ पे line के male sterile line है, and B line is male fertile line. Male fertile line, and it is maintained by crossing A and B. We all know A और B को क्रॉस, इसमें भी देखो A और B को क्रॉस करके 50% स्टाइल प्लांट होता था, इस तरह इसमें भी हम लोग, दिस इज मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग A and B, and this can be used for hybrid seed production. This can be used for hybrid seed production of vegetatively propagated and ornamental crops. Propagated and ornamental crops. Those crops जिसमें क्या था, grain is not an economic factor. Grain is not an economic factor. So इसमें साइटोप्लाज्मिक जीन से कंट्रोल होता है, दो लाइन होते हैं A and B. A is male sterile and B is male fertile, and we maintain the lines by crossing both, मतलब male sterility is maintained by crossing A and B lines. और इसको कहाँ यूज किया जाता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में. किसके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट्स को या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को. उन क्रॉप्स को सिंपली आप समझे जिसमें ग्रेन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, जैसे राइस है या व्हीट है या मेज है, ये सब में क्या ग्रेन इकोनॉमिक फैक्टर है. ग्रेन मींस राइस की ग्रेन को ही हम सेल करते हैं. पर इसमें क्या यूज है, वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होता है. कोई फ्लावर हो, फ्लावर में तो ग्रेन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, फ्लावर इज इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी उसको बेचे कमाते हैं हम लोग. सो उसके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. नाउ थर्ड वन इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस, जिसके बारे में आपसे पूछा गया था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि लिमिटेशंस क्या है सीजीएमएस के. ठीक है, तो सीजीएमएस इट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर जीन्स. कंट्रोल्ड बाय बोथ साइटोप्लाज्मिक एंड nuclear genes. It consists of three lines, A, B and R lines. A, B and R lines. तो यहाँ पे क्या होता है, A line is male sterile, B line is male fertile, and R line is the restorer line. It is restorer line. And what is the restorer line? That is जो F1 हाइब्रिड की फर्टिलिटी को रिस्टोर करे. इट रिस्टोर्स फर्टिलिटी ऑफ F1 हाइब्रिड. बट जनरली आपको ध्यान में रखना है कि रिस्टोरर लाइन है. तो वन इज मेल स्टेराइल लाइन, अदर वन इज मेल फर्टाइल लाइन, एंड थर्ड वन इज रिस्टोरर लाइन, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ओनियंस.
first discovered in onions. It is controlled by interaction of cytoplasmic and nuclear gene. You can see that यहाँ पे आपको cytoplasmic gene है और nuclear gene भी है, तो दोनों के interaction से ही इसको हम लोग control करते हैं. And it is also maintained by crossing A and B line. Generally we cross A and B line, but R line here is restorer line, जो कि बाद में fertility को restore करता है. Okay, so you should be knowing that. So generally ये तीन types के हैं. I hope you understand तीनों के क्या क्या roles हैं, कि कौन कौन से lines यूज होते हैं, तीनों आप समझ गए होंगे. जैसे यहाँ पे जनरली एक और आप चीज देख लो, जैसे इसमें देखो ग्रेन्स वाले क्रॉप में यूज होता है, इसमें वैसे क्रॉप में ये सीड, इसको भी आप सीड प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, पर ग्रेन वाले क्रॉप में. इसको भी आप सीड प्रोडक्शन में यूज करो, पर जिसमें ग्रेन इकोनॉमी फैक्टर नहीं है उस क्रॉप्स में. ठीक है. उसी तरह साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी है, इसके बारे में भी समझिए. और एक और है, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पर मैं चाहूंगा कि आप लिखो ताकि आपका आंसर इनहैंस हो. दैट इज केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेबिलिटी. इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, नाम सोच ले, केमिकल्स. मेल स्टेबिलिटी को इंड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, केमिकल्स. सच एज एग्जांपल में कुछ केमिकल्स डाल देना आप, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट, सोडियम मिथाइल arsenate. You also use zinc methyl arsenate. These two are used for rice. Rice में मिल स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं. We also use NNA. It is used in cooker beets. We also use ethyl. Ethyl is the other chemical. It is used in rice, wheat, etc. So these are the types of mill sterility. Hope you understand this. मिल स्टेबिलिटी समझ में आ गया आप सबको. अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में, टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी. तो सबसे पहले हमको समझना होगा सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या था, जो मैंने बताया था. इन सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी द प्लांट्स हैव फंक्शनल पोलन. ठीक है, वो रिलीज कर पा रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं. पर मिल स्टेबिलिटी में क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू रिलीज और प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन. बट इन सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी दे आर they have functional pollen, they can release those functional pollen, but these functional pollen inability of functional pollen to set seeds when self pollinated. जैसे आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, इसमें फंक्शनल पोलन रिलीज तो हो रहा है, पर वो इनेबल है, मतलब वो एबल नहीं है कि वो सीड को सेट कर पाए. देखो इनेबिलिटी है उनकी, दैट इज नॉट एबल टू सेट सीड्स व्हेन सेल्फ पोलिनेटेड. तो इनेबल फंक्शनल पोलन इज प्रोड्यूस्ड हियर, पर प्रोड्यूस और रिलीज हो रहा है. पर मेल स्टेबिलिटी में क्या ना प्रोड्यूस हो रहा है ना रिलीज हो रहा है. I hope you understand. ये तो सिंपली एक और चीज में बोला जाता है, hindrance to self pollination. They are simply called hindrance to सेल्फ फर्टिलाइजेशन. हमको अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रोकना है किसी क्रॉप को, तो उसमें हम लोग सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी करा देते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब इसका देखो क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट टाइप्स इज बेस्ड ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी. ऑन फ्लावर मॉर्फोलॉजी दे आर हेटेरोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक. हेटेरोमॉर्फिक दैट इज डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, नाम से हेटेरो, डिफरेंट इन morphology. In homomorphic, homo, that is same in morphology, not different in morphology, that is same in morphology. Okay, तो heteromorphic में देखो दो टाइप होते हैं, डाइस्टाइली, यहाँ सब इसके दो टाइप होते हैं. नंबर वन डाइस्टाइली, दैट इज स्टाइल और स्टेमेंस जो इसमें दो टाइप होते हैं, या तो डाइस्टाइली दो, दैट इज या तो शॉर्ट होंगे या तो लॉन्ग होंगे. And this can you will be able to see this in Promelaceae. Primules में आप इसको देख सकते हो. सेकेंडली होता है ट्राइस्टाइली. ओके, दैट इज इसमें तीन टाइप्स के स्टाइल होते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग. ओके, डाइस्टाइली इन टू टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग. ट्राइस्टाइली में तीन टाइप, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग, थ्री टाइप्स के होते हैं स्टाइल. और ये आपको कहां देखने को मिला, लैंथरेंस में, दैट इज लैंथरेसी, कैन बी सीन इन लैंथरेसी, जो लैंथरेंस होता है उसमें देखने को मिलेगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड हेटेरोमॉर्फिक. नाउ होमोमॉर्फिक दैट इज नॉट डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, दैट इज सेम इन मॉर्फोलॉजी. होमो नाम से चल रहा है, हेटेरो डिफरेंट, होमो मींस सेम. So it is of two types. First one is sporophytic, that is governed by self incompatibility is governed by sporophytics. क्या समझते हो आप sporophytics से, genotype से. Second one is gametophytic. Here the self incompatibility is governed by genetic constitution.
Sporophytic SI was governed by SI means self-incompatibility. It was governed by genotype, and in gametophytic it is governed by genetic constitution. So this was first type based on flower morphology. Sorry. Now moving to the second type, that is on basis of genes involved. Okay. So on basis of genes involved, there are three types: monoallelic, diallelic, and polyallelic. नाम से चला monoallelic. Mono means single. That is here एक gene involved, single gene is involved, single gene involved. Diallelic two. That is two genes involved. Polyallelic means many. That is several genes involved. And this several इसमें क्या हो रहा है, एक जीन सिंगल जीन इज लीडिंग टू सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी. इन डायलेलिक टू जीन्स आर लीडिंग टू सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, एंड पॉलीलेलिक सेवरल जीन्स आर लीडिंग टू सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी. नाम थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा. फिर साइट ऑफ एक्सप्रेशन स्टेगमेटिक, दैट इज SI expresses on stigma, that is self incompatibility is expresses on stigma. Stigmatic. Styler, SI is expressed on style. Ovarian, SI is expressed on ovary. So I hope you understand these three types. That is site of expression. कहाँ express हो रहा है, कितने genes involved थे. Next one is pollen cytology. What is the cytology of pollen? First one is binucleate. That is pollen grains have two nuclei. Bi means two. So pollen grains have two nuclei, or which we say nucleus. Trinucleate means three. So pollen grains have three nuclei. So I hope you understand the types of self incompatibility. तो मेल स्टेबिलिटी के सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, और सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी के भी सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे. काफी लेमन लैंग्वेज में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस भी आपको एक ओवरऑल समझ में आ गया सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी और मेल स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी सिस्टम इन हैबिट सीड प्रोडक्शन. सबसे पहला लिमिटेशन क्या, रिक्वायर मोर एरिया, एंड सेकंड इज रिक्वायर मोर लेबर. व्हाई? Because here we have to maintain three lines, A line, B line and R line. तो तीन लाइन को मेंटेन करने के लिए we need more space. It needs more space. And for to maintain three lines, we need more labor also. When you see here, when I taught you CGMS, we had three lines, A, B, R. तीनों को मेंटेन करने के लिए we need more labor and more space. But in others, we only two line, A, B, A, B, A, B. Simply you can say जैसे AB line है तो only A line, B line. Two lines, less space is required and less labor is required. दो ही line को देख करना है. But here three lines, so you can see the space here. This much space, but here this much more than this space is required. So we need more space, and for maintaining of three lines, more labor is required. Moving on next, sometimes it gives inferior performance. कभी-कभी inferior performance देता है. कभी-कभी कोई जो रिस्टोरर लाइन है वो नॉन अवेलेबल रहता है. इतना बोलना आसान है कि वी विल मेंटेन द फर्टिलिटी बाय रिस्टोरर लाइन, बट अवेलेबिलिटी ऑफ दैट रिस्टोरर लाइन, फाइंडिंग दैट रिस्टोरर लाइन इज नॉट इजी. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्टोरर लाइन इज अंदर प्रॉब्लम. एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, जो हमारा जो रिजल्ट है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से भी चेंज हो सकता है. तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स, और यू कैन से मेजर लिमिटेशंस ऑफ CGMS इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. So I hope you understand. और भी limitations है, मैं चाहूँगा आपको कमेंट करके बताऊँ. So that is all for today. I hope you understand everything. Please do like, please do share, please do subscribe. For lengthy question था आज का, और इसलिए थोड़ी टाइम लगी. But I hope आपको सारे जो concepts से समझ में आ गया. This is very important. Male sterility, self incompatibility का भी favorite topic है UPSC का, और बार-बार पूछते हैं. I hope you understand using this video. Male sterility क्या होता है, self incompatibility क्या होता है. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.